हाँ जी बाबा जी, जो अच्छा ये 2 दिन का समागम होया, की कहना चाहते हो? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਬਾਊ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੰਗੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਭਗ 23 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਆਏ ਆ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਵਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਝਾਰਖੰਡ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਬਾਊ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੰਗੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ, ਆਹ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾਈਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਊ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ 'ਤੇ ਕੁਛ ਮਤਭੇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਬਾਊ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨੁਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ 2 ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਊ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ 40 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਪਤਕੁੰਡ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਦਾਨੀ ਲਾਲਾ ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਚੁੰਬਰ ਮੀਰਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚਮਾਰ ਬੁਲਟਨ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਹੈ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ गुरुदेव जो बोले सो नर पाए, सतगुरु दास महाराज की जय। अच्छा महाराज जी, एक जानकारी और चाहेंगे, वो ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन का जो है 100वां स्थापना दिवस है, वो कब मनाया जा रहा है, कौन सी डेट को है? जो ऑल इंडिया धर्म मिशन का मंडल का स्थापना दिवस है जी, आदि धर्म मंडल का स्थापना दिवस है, जो 11-12 जून 1926 को बाबू मंगू राम जी ने बनाया था, वो 100 साल होने जा रहा है। वो 100 साल 26 जो चला है, जो नया साल आज पहली तारीख है, वो 11-12 जून है जो आ रहा है। अच्छा, जून निर्धारित को हो गई है। आज 5 महीने के बाद बड़े पैमाने पर अच्छा। पूरे भारतवर्ष से संगत आएगी, विदेशों से संगत आएगी। और जहाँ तक है कोई भी स्टेट है जो हमारे इंडिया की है, भारत की है, वो खाली नहीं रहेगी। सारी जगह से संगत आएगी। जहाँ तक नेपाल से बड़े पैमाने पर संगत आएगी। और जो बाबू मंगू राम की जीवनी पर बात भी होगी। और एक देखने योग्य होगा कि अलग अलग हमारा सामाजिक जो जैसे कह लो कल्चर है, हाँ, अलग अलग कल्चर है। बिहार वाले हैं, हाँ जी, नेपाल वाले हैं, या केरला वाले हैं, पश्चिमी बंगाल वाले हैं, उड़ीसा वाले हैं, और असम वाले हैं, त्रिपुरा वाले हैं। अलग अलग कल्चर के संगत वो यहाँ आएगी, चाहे 2 लोग आए, चाहे 3 लोग आए, इन स्टेटों तो से। इतने लोगों का मैनेजमेंट किस कमेटी कौन करेगा? मैं आयोजन करता अरे जैसे चरण आपने चुगंगा श्री घुरालगढ़ साहिब के द्वारा ही है। देखो, जैसे आपने देखा है, हाँ जी, इतनी संगत को किसने संभाला? लंगर लगे है ना, बड़ी भारी भीड़, इतनी सर्दी में, मतलब इतने लोग आना बड़ी बात। तो उस टाइम भी हमारी जो प्रबंधक कमेटी है जी, और पूरा कोशिश करेगी जी भी पूरी संगत को संभाला जाए। और जैसे हमारे लंगर वाले लोग हैं, लंगर हिमाचल वाले भी आएंगे, लंगर लगाएंगे, हर एक स्टेट्स के लोग आएंगे, अलग अलग भांति जिसका उनका कल्चर है, जो लंगर वो खाना चाहते हैं, वो हमारी कोशिश रहेगी। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और उसमें देश विदेश के संगत जो है बिल्कुल शामिल होंगे, बिल्कुल आएगी। सभी ऐसी कैटेगरी के लिए बड़े गर्व की बात है। मतलब जैसे हमारा धर्म यूनिट है ना जो इंग्लैंड वाला जी, उन्होंने एक हमारे जो ब्रह्मलीन महापुरुष हैं प्रोफेसर लाल सिंह जी, उन्होंने 2 किताबें जो नई बनाई है, वो आदि धर्म का उन्होंने बहुत बड़ा उसमें प्रचार किया है। तो वो सारा पैसा इंग्लैंड वालों ने खर्चा है। हमारे पास वो किताब जो पंजाबी की वो आ चुकी है। तो वो उन्होंने बोला इंग्लैंड वालों ने भी ये समाज को फ्री देनी है। अच्छा, इसका पैसा नहीं लेना। जी जी, हिंदी की जो है वो छपने थोड़ा सी कमी थी, और मेरे ख्याल 1-2 दिन में आ जाएगी। तो पूरी जो किताबें इंग्लैंड वालों ने छपाई हैं वो धार्मिक किताब है, जिसमें गुरुदास महाराज की विचारधारा के माध्यम से संगत को जानू कराएगी। तो वो किताब भी हिंदी की भी आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है भी जो ये प्रोग्राम आएगा 11-12 जून का, उसमें यानी कि लोग जो है बाहर जाने के बाद भी, जैसे फॉरेन में, आउट ऑफ कंट्रियों में भी अपने गुरु से, अपने देश से और अपने धर्म से प्रेम करते हैं, इसलिए वो लोग काम कर रहे हैं, चाहते हैं। उनके मन में ये ख्वाहिश रहती है जी। उन्होंने वो बुरा समा देखा है, हाँ जी, बुरा समा देखा है, इसलिए वो चाहते हैं भी जो हमारा समाज है आगे बढ़े, आर्थिक तरफ से और सामाजिक तरफ से, धार्मिक तरफ से। जो क्रांति है, इस क्रांति को पूरे समाज में लाए ताकि हमें पूरी आज़ादी मिल सके। नहीं तो ऐसे बहुत लोग देखने को मिलते हैं महाराज जी, सब तो लोग उनको कैसे धन्यवाद करोगे? वो लोग इतने 7 समुद्र पार बैठे रहने के बावजूद भी यहाँ की चिंता करते हैं, और फिर आपने बताया फ्री ऑफ कॉस्ट बुके जो हैं गुरु महाराज जी की प्रचार प्रसार के लिए वो भेंट करा रहे हैं। देखो जी, बात ये है, हाँ जी, जब कोई चलता है ना जी, जैसे साहब कांशीराम रहे जी,
वो जब चले तो पहले जो उनकी जीवनी हमने सुनी है, जो जी। उनसे बातचीत करी है, मैंने साहब कांशीराम के साथ रहे हैं, जी। जो मैंने उनका अनुभव देखा है, वो चलते रहे, अच्छा। दिन रात चलते रहे, गांव गांव चलते रहे, कोने कोने में चलते रहे और हर घर में जाते रहे, लेकिन समाज को जगाते रहे, पर फिर भी समाज नहीं आगे बढ़ा। कोशिश उनकी रही, जी। चले गए दुनिया से, ऐसे नहीं है। बाबा साहब जब थे तो उससे पहले बहुत ज्यादा हमारे साथ बुरा होता था, जी। लेकिन बाबा साहब आए, उन्होंने बदला, समाज को बदला, जी। उन लोगों को बदला, ब्राह्मणवादी के साथ, सिस्टम के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। यानी कि परिवर्तन का चक्र है, इसमें सब लोग जो है चलता अपना समय रहेगा, दे रहा है। आगे कोई और आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ये चलता रहेगा, बंद जी। नहीं होगा कभी भी। मूवमेंट ना तो बाबू मंगूराम की खत्म होने जी, वाली है, बिल्कुल, ना ही गुरु रविदास जी की खत्म होने वाली है, क्योंकि जो धार्मिक आजादी है, गुरु नानक साहब, सतगुरु कबीर साहब, गुरु नामदेव जी और गुरु रविदास जी, ये जो धार्मिक आजादी की उन्होंने लड़ाई लड़ी है, ये चलती रहेगी। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और करना चाहूँगा। भारत में दुनिया भर के गुरु रविदास जी के मूवमेंट पर डेरे बने हुए हैं, समाज का काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पहला ये स्थान देखने को मिला है जो पूर्वजों की बात करता है, यानी कि गदरी बाबू मंगूराम जी की हुई या बंताराम गेड़ा जी की, जो अन्य और भी पंजाब। हाँ। गुरु रविदास जी की बात है, और अब तेजी से 25-30 साल से गुरु रविदास की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कभी नहीं छोड़ रहे वो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत आगे तेजी से चल रहे काम- हैं। हाँ परिवर्तन आ गया डेरों में। जी। अब वो कोई ऐसा डेरा नहीं है जो गुरु रविदास की बात नहीं बात करता। ना करा, हाँ परिवर्तन आया है, जी। लेकिन परिवर्तन जो आया है, एक दिन वो क्रांति आएगी, धार्मिक क्रांति आएगी। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, जितने पंजाब के बड़े डेरे हैं चाहे छोटे डेरे हैं, जी। जो आज गुरु रविदास महाराज का प्रचार दिन रात में लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं। जी। और हम इस चंचो गंगा की तरफ से, कमेटी की तरफ से, जी। मैं अपनी तरफ से सब संतों महापुरुषों को धन्यवाद करता हूँ और रास्ता करता हूँ भी ऐसे वो चलते रहेंगे और क्रांति एक दिन आएगी। यही डेरे जी। इकट्ठे एक दिन आएंगे, हाँ। और पूरा देश में क्रांति आएगी और गुरु रविदास की वाणी का प्रचार पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आएगा। वाह जी वाह, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, श्री चर्चु गंगा खुरालगढ़ साहिब की, महाराज श्री सुरेंद्र दास जी की जय हो, जय हो, जय हो महाराज जी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, सतनाम।